Hello students, welcome to science stream. As you all have opted to be a student of science, which is a very important thing in day-to-day life. I am Atulya Joshi, your chemistry lecturer. So you are going to read today the first chapter, which is called Some Basic Concepts in Chemistry. Some Basic Concepts in Chemistry. So we are going to start our studies with the very basic one, that is some basic concepts. So today we are having lecture number of 1 of this particular topic. Now since you have to read science, so first of all you must know what is science. So the word science is derived from a word that is scientia. This is the word from which your word science has been taken, which simply means knowledge. So what is science? Science is defined as knowledge acquired by logical thinking, experimentation, observation. So in this way, whatever knowledge you gain or you gather, that constitute the science. So in the precise words, we can define as science the systematic knowledge, gained or acquired through observation, experimentation, and logical reasoning. This is what we define science. This is the way to define science. ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? आप अपने आसपास बहुत से चीज़ों को होता हुआ देखते हैं, बहुत से फिनोमेनास को होते देखते हैं. आप उनको बड़ी कीनली ऑब्जर्व करें और देखें व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग देयर एंड यू ड्रा सम कंक्लूजन फ्रॉम देयर. और उसके बाद वहाँ से आप कुछ निष्कर्ष निकालें, कोई ज्ञान अर्जित करें, कोई नॉलेज गेन करें, देन दैट विल बी कम अंडर द साइंस. आप कोई प्रयोग करें, प्रयोग करने के बाद प्रयोग से जो कुछ आपने सीखा वो भी आपका इसी में आएगा. आप इन दोनों में से कुछ भी ना करें, लॉजिकल रीजनिंग करें एक दूसरे चीज़ों के बारे में, किसी फिनोमेना के बारे में, जो भी आपके आसपास हो रहा है वो सब कुछ आपका साइंस के अंदर आएगा. नाउ द सेकंड थिंग which you will be studying with me, that is chemistry. So if you know the science, then you also know what is chemistry. What is chemistry? If somebody asks what is chemistry, chemistry is basically a material science. Why we call it as material science? Because chemistry deals with matter. Matter, all of you know from the very earlier classes, 6, 7 से start हो जाता है what is matter. So it is a material science. Why we call it as material science? Because in this particular
branch of science we will be dealing with composition of matter, कि हाउ द मैटर इज मेड अप ऑफ, किस किस चीज़ से बना है, कैसे बना है, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ चेंजेस ए मैटर कैन अंडरगो, किस तरीके के चेंजेस मैटर में हो सकते हैं, होते हैं, उन सब चीज़ों को स्टडी करें हम, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में साइंस की, उसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री. सो हाउ वी विल डिफाइन केमिस्ट्री? दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेस, that branch of physical sciences or physical science which deals with study of matter, that is composition of matter, structure of matter, various physical or chemical changes, which matter can undergo, along with energy changes during these phenomena or these processes, that is chemical changes. इन सब चीज़ों को जो डील करे साइंस की, उस ब्रांच को हम कहते हैं केमिस्ट्री. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस, क्योंकि केमिस्ट्री हैज़ ए वेरी वास्ट स्कोप इन योर डे टू डे लाइफ. आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है. I will be mentioning a few where we use chemistry. So the first thing is, I am just discussing importance and scope of chemistry. Importance and scope of chemistry. So first thing which we are mentioning over here in the importance or scope, that is industry. Chemistry is used in a number of industries. For example, manufacture of fertilizers, first thing, drugs, manufacture of drugs, डाइज एक्सेट्रा. बहुत सी इंडस्ट्रीज के अंदर हम इसको यूज करते हैं. सॉप इंडस्ट्री में, ड्रग्स में, डाइज में. तो आई एम मेंशनिंग ए वेरी फ्यू ऑफ देम. रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज यू कैन थिंक अबाउट और यू कैन लर्न फ्रॉम द बुक. वी आर नॉट गोइंग टू ऑल द इंडस्ट्रीज इन दिस. सेकेंड वन इज फूड. हमारा जो फूड है उसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं, फूड प्रोडक्ट्स जो हैं, आप बहुत से फूड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, उन सब के अंदर केमिस्ट्री यूज होती है. थर्ड वन इज ड्रग्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स, मेडिसिन्स जिसको बोलते हैं आप. मेडिसिन्स कह लीजिए, ड्रग्स कह लीजिए. बेसिकली ड्रग में और मेडिसिन में सिर्फ ला की वजह से फ़र्क आता है. अदरवाइज ऑल द मेडिसिन आर अंडर द, दे आर केमिकली वी कॉल देम एज ड्रग्स. तो हमारी बहुत सी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं विच वी प्रिपेयर. फॉर एग्जाम्पल
there is a drug called cisplatin. This cisplatin is used for curing cancer. This is a medicine used for curing cancer. इसी तरीके से AGT, the full name of this is azithromycin. This particular drug is used to cure or treat AIDS. So ड्रग इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, हमारी सोप इंडस्ट्री है वहाँ पे यूज कर सकते हैं। डे टू डे हमारी लाइफ में अगर हम देखें, हमारी जो क्लोथिंग्स है वो भी हमारी केमिस्ट्री से आती हैं। आपकी पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर इंडस्ट्री है, आजकल पॉलीमर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आप प्लास्टिक वगैरह यूज़ कर रहे हैं, सारे के सारे दे ऑल आर prepared industry chemically. So there are so many things which we can mention. Rest of the things you can read from the book. There is no problem in that. We are just highlighting what is the importance of chemistry. Chemistry कहाँ कहाँ काम आती है और इसका क्या scope है. That is, I have discussed a few one. You can have others also. Now, as in the beginning, when we defined science, then there we mentioned one thing, that the knowledge acquired by experimentation, observation. Experimentation में when we perform an experiment, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज आपने किसी मूविंग व्हीकल की स्पीड कैलकुलेट करनी है। यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए मूविंग व्हीकल। यू कैन कॉल इट एज स्पीड और वेलोसिटी। इफ यू आर टेकिंग द स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, then it will become velocity. So I am just simply taking the without direction, I am taking the speed. आपने अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड मेजर करनी है, then what we will require, आपको पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। आपकी उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में किया, दैट विल गिव यू द स्पीड। इट मीन्स to calculate the speed of an object, you have to measure two things. आपको दो चीज मेजर करनी पड़ेंगी, one distance and second one is time. It means when you do experiment, you require to measure certain physical quantities. हमें कुछ physical quantities को measure करना पड़ेगा, that is inevitable. उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, मेजर करना ही पड़ेगा। सो इफ वी गो बाय एन मेजरमेंट, मैं एक मेजरमेंट की तरह जाता हूं। मान लीजिए हमने इसमें डिस्टेंस मेजर किया, सपोज दैट डिस्टेंस वाज 100 मीटर। नाउ दिस मेजरमेंट हैज टू पार्ट्स, एंड व्हाट आर दोज टू पार्ट्स? फर्स्ट वन इज दिस, इट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट, इसमें हमेशा नंबर होगा एक, एंड दिस सेकेंड पार्ट इट इज कॉल्ड ए यूनिट। इट इज कॉल्ड ए यूनिट। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच comes to our mind is, when we measured one thing, this is a number, no problem about that, this is a unit. So naturally a question arises, what is a unit? जब हम यूनिट की बात करेंगे तो नेचुरली आपको पता होना चाहिए कि यूनिट क्या है, व्हाट इज ए यूनिट। सो हाउ विल डिफाइन द यूनिट? ए यूनिट इज डिफाइंड एज ए फिक्स्ड स्टैंडर्ड, a fixed standard
with respect to which we measure a given quantity. ये आपका एक फिक्स स्टैंडर्ड है। मैं सीधा आपके यूनिट सिस्टम पे ना जाके आई वुड लाइक टू मेक यू अवेयर व्हाट इज एग्जैक्टली मीन्ड बाई दिस यूनिट। आप लोगों ने, बहुत सौ ने अपने ग्रैंडफादर्स को, ग्रैंड मदर्स को कहते सुना होगा 10 कदम पे ही तो है। आपको कहीं काम भेजना हो और अगर आप आना कहानी करें तो क्या कहते हैं वो, 10 कदम पे ही तो है, भाग के लिया। कोई भी चीज़ मंगानी है तो 10 कदम पे है, भाग के लिया। व्हाट इज दैट 10 कदम? इफ वी से 10 कदम, then in this measurement this kadam is a unit according to them. And what is that kadam? That is a step. आप एक स्टेप जो लेते हैं पैर से चलते हुए, उसको उन्होंने कदम कहा। सो दिस इज ए यूनिट, बट दिस इज ए रॉ यूनिट। रॉ यूनिट क्या मतलब है? ये कोई मतलब बैलेंस्ड यूनिट नहीं है, यूनिफॉर्म यूनिट नहीं है। रीजन बीइंग कि अगर एक 2 साल का बच्चा चलेगा तो उसके कदम की लंबाई कम होगी, एक 6 फुट का आदमी चलेगा तो उसके कदम की लंबाई अलग होगी। तो आपका ये यूनिट बदलता रहेगा विद द हाइट ऑफ द पर्सन। सो दिस इज नॉट ए गुड यूनिट, इट इज ए वेरिएबल यूनिट। सो टू इसी तरीके से आपको मैं बताता हूं, एक पहले सिस्टम यूज होता था आपका जिसको हम बोलते थे FPS सिस्टम, दैट इज फीट पॉन्ड एंड सेकंड सिस्टम कहते हैं इसको। फीट, पॉन्ड एंड सेकंड। इंग्लैंड में अभी भी पॉन्ड में यूज करते हैं, पॉन्ड में मेजर करते हैं वेट को। दिस फीट वाज यूज टू मेजर द लेंथ, पॉन्ड वाज यूज टू मेजर द वेट एंड सेकंड वाज यूज टू मेजर द टाइम। अब ये जो फीट था दैट वाज द फीट ऑफ किंग। किंग के कदम की जो दूरी थी उसको 1 फीट मानते थे वो लोग। अब राजा 6 फुट का हो गया तो फीट कुछ और हो जाएगा, अगर राजा 2 फुट का हो गया तो फीट कुछ और हो जाएगा। सो दिस इज नाउ इट इज नॉट यूज्ड, although it is still being used in somewhere, but uniformly यूनिवर्स अपने इंटरनेशनली हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो आजकल हम यूज़ करते हैं। इसके बाद मीट्रिक सिस्टम आया, आपका CGS सिस्टम आया, कई सिस्टम है हमारे पास यूनिट्स के, दैट इज FPS, CGS, मीट्रिक सिस्टम एंड SI सिस्टम। FPS में फुट में आपका लेंथ होगा, पॉन्ड में आपका वेट होगा, सेकंड में आपकी टाइम होगी। इसमें सेंटीमीटर में लेंथ होगी, ग्राम में आपका वेट होगा, सेकंड में आपका टाइम होगा। मीट्रिक सिस्टम के अंदर जो है किलोग्राम में आपका वेट होता है, मीटर में डिस्टेंस होता है और सेकंड में आपका टाइम होता है। SI सिस्टम मीट्रिक सिस्टम से मिलता जुलता ही है। ये जो मीट्रिक सिस्टम है ये एक संस्था बनी हुई है इंटरनेशनली डिफरेंट कंट्रीज़ की। उन्होंने ये डिसाइड किया फ्रांस के अंदर, पेरिस के पास एक जगह है स्फीयर्स, वहाँ पे हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। एक संस्था है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, IBWM, दैट इज इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स। ये आज की डेट में हमारी वर्ल्ड की प्राइम बॉडी है जो इंटरनेशनली मेजरमेंट के स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करती है, जो फिक्स स्टैंडर्ड है हमका। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कदम, तो वो एक कदम हमारा हमने फिक्स कर दिया था कदम, और उससे हम मेज़र कर रहे थे डिस्टेंस को। तो ये जो संस्था है इसका हेडक्वार्टर है, एक जगह है स्वेयर्स नियर पेरिस, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ये संस्था आज की डेट में डिसाइड करती है कि आपका किलोग्राम क्या होगा, मीटर क्या होगा, सेकंड किसके बराबर होगा। तो इसको हम बोलते हैं सिस्टम डी इंटरनेशनल है।
SI सिस्टम इसको सिंपली वे में बोलते हैं। और ये जो संस्था है ये अपने सभी मेंबर कंट्रीज़ को, ये तो इंटरनेशनल संस्था होगी, इसी तरीके से हर कंट्री का अपना एक वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट होता है। ये संस्था उन मेंबर कंट्रीज़ के जो वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट होती है उनको अपने सभी यूनिट्स का एक फ़ोटोकॉपी करते हैं ना, जैसे आप कापी की कागज़ की फ़ोटोकॉपी कराते हैं, उसी तरीके से अपने हर एक स्टैंडर्ड का एक फ़ोटोकॉपी या यूँ कह लीजिए एक रेप्लिका देती है, एक डुप्लीकेट वो देती है, जिससे कि सब जगह मेजरमेंट होता है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये सारे के सारे स्टैंडर्ड पड़े हुए हैं नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ये पूसा रोड पे दिल्ली में है। इसके अंदर सारे स्टैंडर्ड रखे हुए हैं, 1 किलोग्राम क्या है, 1 मीटर क्या है, उनको मेज़र करने का सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। और वहाँ से फिर ये जो है उसके साथ उन स्टैंडर्ड्स के साथ फिर हमारा इंडिया का जो 1 किलोग्राम 1 मीटर ये कैलिब्रेट होता है। उसके कंपैरिजन में हम लोग अपने वेट्स को कैलिब्रेट करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं, ताकि कोई वेरिएशन ना हो। तो आज की डेट में हमारे जो यूनिट्स हैं, आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि हमारे पास यूनिट्स जो हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स। फिजिक्स में भी पढ़ाएंगे ये, पर क्योंकि हमारे भी फर्स्ट चैप्टर में है तो वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस दिस। यूनिट्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं। वन आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स। एंड सेकेंड वन आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स क्या होते हैं? हमारे पास 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज वेट, लेंथ, टाइम, करंट, योर टेम्परेचर, योर ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये 7 हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। इनके जो यूनिट्स हैं वो सबके सब फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं। यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेसिक यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट। एंड रिमेंबर दैट दीज यूनिट्स कैन नॉट बी ड्राइव्ड फ्रॉम सम अदर सिंपल यूनिट। इनको आप किसी दूसरे सिंपल यूनिट से ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है? तो वो हमारे फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? वो यूनिट जिनको हम फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव करें। जैसे आपका फोर्स, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, फोर्स क्या होता है? दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए होता है। अब ये आपका जो फोर्स है इसका हमने यूनिट दे रखा है न्यूटन। तो 1 न्यूटन ऑफ फोर्स ये बेसिकली किसके बराबर होगा? जब आपके पास 1 किलोग्राम का मास हो और वो 1 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से आप उसको एक्सेलरेट कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 1 किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2। सो योर 1 न्यूटन इज बेसिकली इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर second minus 2. So this Newton is derived from your basic units of mass, length and time. So it is a derived unit. इसी तरीके से आप वर्क के लिए निकाल सकते हैं, एनर्जी के लिए निकाल सकते हैं। सो वो सब के सब यूनिट्स क्या कहलाएंगे? आपके ड्राइव्ड यूनिट्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गोइंग टू अदर थिंग्स, we must define the 7 different type of units of fundamental units. फंडामेंटल यूनिट्स में पहला यूनिट मैंने बताया मास का यूनिट, दैट इज किलोग्राम। एक ध्यान रखना, आपने किसी भी यूनिट के साथ कभी भी एस नहीं लगाना है। बहुत से लोगों को ये गंदी आदत होती है, जैसे 10 किलोग्राम, तो 10 किलोग्राम को अगर आप ऐसे लिखते हैं तब तो ये ठीक। अगर आप इसको लिखते हैं ऐसे
देन इट इज रॉन्ग। कभी भी यूनिट के साथ एस नहीं आएगा। यूनिट का मतलब होता है एक, इकाई, एंड बाई एडिंग दिस एस यू मेक इट ए प्लूरल। एक से ज्यादा चीज बना दिया आपने, तो इसलिए कभी भी आपने एस नहीं लगाना है किसी भी यूनिट के साथ। यह आपने ध्यान रखना है। किलोग्राम, व्हाट इज ए किलोग्राम? इट इज वेट ऑफ a prototype cylinder made up of platinum iridium alloy, kept at headquarters of IBWM at Spheres near Paris। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तब भी काम चलेगा। When we mentioned the headquarter of IBWM, that is a single thing, तो वो वहीं पे मिलेगा आपको। एक सिलेंडर बना के रखा हुआ उन्होंने, वहां पे एक स्टैंडर्ड इस टाइप से सिलेंडर बना हुआ है, प्रोटोटाइप सिलेंडर। इस सिलेंडर को उन्होंने बनाया प्लैटिनम और इरिडियम से, इसकी अलॉय बनाई, उससे ये सिलेंडर बनाया। वट एवर इज द वेट ऑफ दैट सिलेंडर केप्ट एट द हेडक्वार्टर ऑफ IBWM, दैट इज कॉल्ड योर स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम। नाउ सम ऑफ you may have the curiosity why this cylinder is made up of platinum iridium। प्लेटिनम इरिडियम की एलॉय का ही सिलेंडर क्यों नहीं बनाया, किसी और चीज़ का एलॉय का, किसी और चीज़ का सिलेंडर क्यों नहीं बनाया? तो उसका ये ध्यान रखना है कि जो प्लेटिनम इरिडियम एलॉय है, इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू कोरेजन। इसका कोरेजन नहीं होता, जैसे लोहे को जंग लग जाती है वैसे इनके साथ किसी तरह का कोरेजन नहीं होता। इनका रेट ऑफ कोरेजन इज़ वेरी वेरी स्लो। कई सालों में जाके कहीं इनके अंदर थोड़ा बहुत वेट का चेंज आएगा। जैसे लोहा आया, अगर हम इसका लोहे का सिलेंडर बना देते ये, तो लोहे पे क्या होती, कुछ टाइम के बाद जंग लग जाती, वेट बदल जाता। इसीलिए हमने प्लेटिनम इरिडियम एलॉय को यूज किया है, सो दैट द वेट ऑफ दैट सिलेंडर मे रिमेन कांस्टेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। नाउ द सेकेंड यूनिट, SI यूनिट, इज योर दैट ऑफ लेंथ, विच इज मीटर। Meter is defined as distance traveled by light in vacuum in 1/299,792,458 of a second। कहने का मतलब ये है इस डेफिनेशन में कि आपकी लाइट, इफ इट इज ट्रेवलिंग इन वैक्यूम एंड वी मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1/299,792,458 eighth part of the second, that will be the your standard meter, that will be called your standard meter। Third unit is that of time, that is second। A second is defined as period of 9,192,631,770, that is दो जगह पीरियड यूज हो जाएगा इसलिए मैं यहां चेंज कर रहा हूं। ए सेकेंड इज डिफाइंड एज ड्यूरेशन ऑफ
9192631770 periods corresponding to transition between two hyperfine levels, between two hyperfine levels of cesium 133 in ground state, इसमें थोड़ा सा समझने वाली चीज है। जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे तब आएगा व्हाट इज मेंट बाय दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन हाइपरफाइन लेवल। किसी भी एटम के अंदर आप 10th तक पढ़ के आए हैं कि उसके अंदर ऑर्बिट्स होते हैं। जब हम 11th में पढ़ेंगे तो यही ऑर्बिट अब इनके एनर्जी शेल्स कहलाएंगे। इन एनर्जी शेल्स में फिर आगे सब शेल्स होते हैं और इस तरीके से एनर्जी का डिवीजन होता है डिफरेंट लेवल्स के अंदर, और आपके इलेक्ट्रॉन्स उन लेवल्स के अंदर जंप करते रहते हैं, इधर से उधर ट्रांजिट करते रहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब अपनी पोजीशंस को बदलते रहते हैं, ट्रांजिशंस करते रहते हैं। तो दो हाइपर फाइन लेवल्स के बीच में, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में समझ में आएगा, दो हाइपर फाइन लेवल के बीच में जब सीजियम अपने ग्राउंड स्टेट में हो, ग्राउंड स्टेट का मतलब वो अपनी नॉर्मल एनर्जी स्टेट में हो, तब आपके जो इतने ट्रांजिशन का जो ड्यूरेशन होगा, इतने पीरियड का जो ड्यूरेशन होगा, उसको हम कहेंगे 1 सेकेंड। सो दिस इज योर यूनिट ऑफ टाइम। The fourth unit is that of current, जिसको हम बोलते हैं एम्पियर। 1 एम्पियर ऑफ करंट क्या होता है? 1 ऑफ एम्पियर करंट क्या है कि हम दो कंडक्टर्स लेते हैं ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, दो कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। These conductors are placed in vacuum. They are placed in vacuum. किस में रखे हुए हैं ये? They are placed in vacuum and they are 1 meter apart from each other. वैक्यूम में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे हैं ये। अब हम इनके बीच में एक क्वांटिटी ऑफ करंट पास करते हैं I, मान लीजिए, और वो क्वांटिटी ऑफ करंट इन इनफाइनाइट लेंथ के पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में अगर एक फोर्स पैदा कर दे 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का, कितना फोर्स पैदा कर दे? फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर का फोर्स अगर पैदा हो जाता है इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में, तो जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में, उसको हम कहेंगे 1 एम्पियर। मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूं ये थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग इतना कन्वर्जेंट नहीं है इनके साथ, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं इस चैप्टर में। क्या है हमारा 1 एम्पियर करंट? हमारे पास दो कंडक्टर हैं, पैरेलल कंडक्टर हैं, जिनकी लेंथ है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स अनंत, जिनका कोई एंड नहीं है। और वो दोनों कंडक्टर्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? जैसे ये आपका वायर होती है उसी तरीके गोल होगी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस वन, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज निग्लिजिबली स्मॉल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए? निग्लिजिबली स्मॉल होना चाहिए। एंड दीज टू कंडक्टर शुड बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, एंड वेयर दे शुड बी प्लेस्ड? दे शुड बी प्लेस्ड इन वैक्यूम। उसके बाद उसमें से जो करंट पास करें हम, अगर वो करंट इतना फोर्स पैदा कर देता है दोनों कंडक्टर्स के बीच में, तो हम कहेंगे जो करंट हमारा फ्लो कर रहा है दैट इज योर 1 एम्पियर। सो आई एम राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। व्हाट इज एन एम्पियर? एन एम्पियर ऑफ करंट is defined as that current which produces
ए फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर between two parallel conductors, between two parallel conductors of infinite length, having negligible area of cross section, placed in vacuum 1 meter apart, placed in vacuum 1 meter apart. So this is the definition of your 1 ampere current. 1 ampere of current is defined as that current which produces a force of 2 × 10⁻⁷ Newton per meter between two parallel conductors of infinite length having negligible area of cross section and placed in vacuum 1 meter apart from each other. So this is the definition of your current. The third, that is next definition in this, is that of टेम्परेचर. टेम्परेचर जैसे आपको पता ही है, व्हाट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कि आपकी कोई चीज़ कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, उस चीज़ का मेजर क्या है? आपका टेम्परेचर. और टेम्परेचर का यूनिट क्या है? इट इज केल्विन. सो व्हाट इज 1 केल्विन? इट इज डिफाइंड एज thermodynamic temperature which is equal to which is equal to 1 by 273.16 of triple point of वाटर. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है उसका एग्जैक्टली 1 by 273.16 जो टेम्परेचर होगा वो कहलाएगा आपका 1 केल्विन टेम्परेचर. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में कर्व प्लॉट करें किसी भी सब्सटेंस की, जैसे वाटर के केस में दिस टाइप ऑफ कर्व इज देयर. दिस इज योर सॉलिड, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज गैस. सो हेयर देयर इज ए इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम होगा. दिस इज रिप्रेजेंटिंग, दिस लाइन इज representing an equilibrium between solid and gas, that is your sublimation. This is representing your melting, equilibrium between melting. This is representing your evaporation, that is the boiling you can say. और what about this point? यहाँ पे गैस है सिर्फ, यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे लिक्विड है. इस लाइन के ऊपर आपका जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम है, गैस और सॉलिड दोनों है. यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों है, यहाँ पे लिक्विड और गैस दोनों है. यहाँ पे क्या है? इस पॉइंट पे ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, दैट इज आइस, लिक्विड वाटर एंड द वाटर वेपर्स, दे विल को एग्जिस्ट. दिस इज कॉल्ड योर ट्रिपल पॉइंट. दिस इज कॉल्ड योर ट्रिपल पॉइंट. ये हर चीज के लिए ही कर्व प्लॉट कर सकते हैं, इसको फेज डायग्राम बोलते हैं. सो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे यहां पे जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर का एग्जैक्टली 1 by 273.16 टाइम्स जो टेम्परेचर होता है, दैट विल बी कॉल्ड योर स्टैंडर्ड केल्विन टेम्परेचर. नेक्स्ट यूनिट इज योर क्वांटिटी ऑफ मैटर. क्वांटिटी ऑफ मैटर का यूनिट है मोल. क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर
इसका यूनिट है आपका मोल। आपने 9th में थोड़ा सा मोल के बारे में पढ़ा था, हम इस चैप्टर में इस मोल को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं, इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ मैटर विच कंटेन एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10 की पावर 23 स्पेसिफाइड एंटिटीज। स्पेसिफाइड एंटिटीज मतलब किसी भी चीज का, किसी भी पदार्थ का वो मात्रा जिसके अंदर इतनी एंटिटीज हों। एंटिटीज मैंने इसलिए लिखा है, इतने एटम होंगे तो वो 1 मोल ऑफ एटम कहलाएगा, अगर इतने मॉलिक्यूल होंगे तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल कहलाएगा, अगर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1 मोल ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। सो दिस इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। द लास्ट यूनिट दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दिस यूनिट ल्यूमिनस इंटेंसिटी के यूनिट है कैंडेला। आई एम नॉट डिस्कसिंग इट ओवर हेयर बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ सॉलिड एंगल। इसकी मैं सिर्फ डेफिनेशन राइट डाउन करूंगा। अगर भविष्य में अभी जल्दी स्कूल खुले, जब फेस टू फेस होंगे, तब मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊंगा कि व्हाट इज सॉलिड एंगल। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल के यूनिट्स भी अलग होते हैं। दिस इज नॉर्मल देन 2 डायमेंशनल एंगल। आपका कोई भी जो कोन होता है, कोन, आइसक्रीम के बहुत कोन खाए होंगे, तो जो कोन होता है, इस कोन के ऊपर वर्टेक्स पे यहाँ जो एंगल बनता है, ये 3D एंगल बनता है, और इस एंगल को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। और इसके जो यूनिट्स होते हैं, दे आर स्टर्डियंस। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको समझाने की, कैंडेला क्यों समझ में आ जाए, वेल एंड गुड। इफ़ यू फेल टू अंडरस्टैंड इट तो लेट मी नो इन द in your comments. I will be taking it again. कैंडेला क्या होता है? मान लीजिए यहां पे हमारा कोई सोर्स ऑफ लाइट है। मान लीजिए दिस इज योर सोर्स ऑफ लाइट। यहां पे इस डायरेक्शन में हमने एक पॉइंट P कलेक्ट किया। कोई भी एक पॉइंट P है हमारे पास इन ए गिवन डायरेक्शन। हम इस सोर्स से इस पॉइंट तक एक एंगल बनाएंगे 1 स्टर्डियन का, सॉलिड एंगल। कितना एंगल बनाएंगे यहां पे? दिस एंगल विल बी ऑफ 1 स्टर्डियन। 1 स्टर्डियन का सॉलिड एंगल बनाएंगे, और इस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी 540 इंटू 10 की पावर 12 हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन ये सोर्स इमिट कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे अगर हमारी जो रेडिएंट एनर्जी है, यहां पे अगर हमारी रेडिएंट एनर्जी जो पहुंच रही है ड्यू टू द सोर्स ऑफ दिस लाइट, इफ दिस एंगल इज ऑफ 1 स्टर्डियन, और उस रेडिएंट एनर्जी इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो 1/683 वॉट पर स्टर्डियन है, तो हम कहेंगे कि दिस सोर्स इज हैविंग ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ 1 कैंडेला। तो हम इसका क्या कहेंगे? ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितनी है इसकी? 1 कैंडेला। सो व्हाट वी विल डिफाइन? ल्यूमिनस इंटेंसिटी दैट इज 1 कैंडेला इज डिफाइंड एज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू ए सोर्स ऑफ लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसी 540 इंटू 10 की पावर 12 हर्ट्ज at an angle of 1 stadian in the given direction has radiant intensity or radiant energy equal to 1/683 watt is called 1 candela। ये डेफिनेशन आपकी। तो इसको हम कहेंगे कि आपका ये 1 स्टर्डियन का एंगल है। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड ऑल द यूनिट्स ऑफ
basic units, you can say 7 basic units we have finished. So I think आज आप इतना ही करें. We have just started it. घबराने की ज़रूरत नहीं है. किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आए, then let me know. I will be addressing it again. दोबारा से समझा देंगे आपको. थैंक यू वेरी मच.